helical spring. So after understanding the technology or terminology of the helical spring, we have solved the formulas also. Load stress equation, load deflection equation. So what was the load stress equation? Anyone, please? Load stress equation is given by tau equal to capital A 8pc divided by pi d square. याद रखिए इसको, है ना? K into 8pc divided by pi d square. This is the load stress equation. ठीक है, stress है और load है. So it is the relationship between the load and stress. So what is K here? K is the Born factor. Formula भी याद रखिए, K equal to 4c minus 1, 4c minus 4, 0.615 divided by C. We have derived this formula in the previous class. What is load deflection equation? 8 PD2n divided by G4. What is capital G? Modulus of rigidity of the material of the wire. D is the diameter of the wire, coil diameter is capital D, N is number of coils, E is the force coming on the spring. Okay, that we have done. And other terms we have also discussed. What are the other terms? Like spring index, ratio of D by D, free length of the spring, compressed length of the spring, and solid length of the spring. So in the today's class, we are going to solve a numerical on the basis of these formulas. So I am taking a numerical in which there is a wagon. Okay, the mass of the wagon is 1500 kg. Okay, मैं पहले given data लिख देता हूँ. I am just writing the given data on the board. है ना? So I am first understanding the numerical given to us. है ना? So this numerical is given on page number 404 in the Bhandari. है ना? So you can take the question from there. है ना? Just I am reading the question. A railway wagon moving at a velocity of 1.5 meter per second. So railway wagon is there, moving at a velocity of 1.5 meters per second, or you can say it is 1500 millimeters per second. And there is a railway wagon, the velocity is given, is brought to rest by a bumper. It is brought to rest by a bumper, and having two springs, two helical springs. ठीक है, तो इसको वैगन को रेस्ट पे लाया जा रहा है with the help of two helical springs. So there is first helical spring and there is second helical spring. Two helical springs are used for the rest of this wagon. It is moving with some velocity 1.5 meters per second. Correct? So two springs are attached in parallel or series. Springs are attached in parallel. So in the parallel case, the total force is taken by both the springs. So this force is distributed between two springs. And so P equal to, I can say P equal to P1 plus P2. In the parallel case, P equal to P1 plus P2. Force is divided. If the springs are identical, in nature, same material, same number of coils, same coil diameter, everything is same, then we can say P1 equal to P2. फिर तो फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, P1 plus P2. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. एक रेलवे वैगन है, उसकी वेलोसिटी गिवन है, उसको रेस्ट पे लाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग्स अरेंज्ड इन पैरेलल. क्वेश्चन में लिखा हुआ है द स्प्रिंग्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल. नाउ द मास ऑफ द वैगन इज 1500 kg. So mass is also given. It is mass I have already mentioned, m equal to 1500 kilograms. Okay. So mass is given. The springs are compressed by 150 millimeter in bringing the wagon to rest. So compression, the springs are compressed by 150 millimeter. 150 millimeter is the compression, it means it is the deflection. So I can write delta equal to 150 millimeter. Springs are compressed, springs are deflected by 150 millimeter, to keep the wagon into rest. The springs are made of hardened and tempered steel wire of SW grade
The capital G is 813, अभी नहीं, capital G is 81370 Newton per mm square. Capital G, modulus of rigidity of the wire material is given. So capital G is also given. Capital G is 81370 Newton per mm square. Is the modulus of rigidity. Okay. Now the constants A and M, capital A and M, capital A or M दो constant हैं. The value of these constant is given 1855 and 0.187. 1855 and 0.187. इन constants के बारे में मैंने किसी एक क्लास में बता रखा है ना, शायद लैब क्लास थी वो, तो बाकी सेक्शंस की जब लैब क्लास होगी तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, है ना. एक कोई सेक्शन था जिसमें मैंने ए और एम के बारे में बताया था, इन constants के बारे में. तो these are given in the question, capital A and small m. The permissible shear stress for the spring wire can be taken as 50% of the ultimate tensile strength. So tau allowable can be taken as 50% of the SUT. So equal to 0.5 of SUT. So this is the permissible value of the shear stress or the allowable value. है ना. After that, design the spring and calculate. Design the spring and calculate. तो spring कितनी है यहाँ पे? The number of the spring is 2. Springs equal to 2. So we have to design the springs and calculate. तो वही सारी चीजें होंगी. Wire diameter we have to calculate. Capital diameter, coil diameter we have to calculate. Take one by one. So wire diameter we have to calculate. Mean coil diameter. Number of active coils. So number of active coils we have to calculate. Third one. Total number of the coils. NT. We have to calculate. NT generally क्या होता है? NT is n plus 2. Generally by default हम ले सकते हैं, ये क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं है, we can assume nt equal to n plus 2. So when n is available, nt can be calculated. Solid length, free length, pitch of the coil. Solid length ls, free length lf, now you can say capital F. So capital ls, capital F, and pitch of the coil. These all parameters we have to calculate, and required spring rate and actual spring rate. Required spring rate and actual spring rate. So K is the stiffness. Stiffness को ही हम कहते हैं spring rate. नई चीज लिखेंगे, spring rate is also known as stiffness. Stiffness के कई नाम हैं. हाँ, stiffness भी बोल सकते हैं, spring rate भी बोल देते हैं. और K is given by P by delta, so we have to calculate K. So we have to calculate K required and we have to calculate K actual. कितना required है और हमको अपने डिजाइन में कितना एक्चुअल मिल रहा है ना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए उनमें, तो लगभग पास ही होते हैं, लेकिन हमें अलग अलग कैलकुलेट करना है. K required, stiffness required, spring rate required and spring rate actually required, actually available. ठीक है. So this is the given data. This is the unknown parameters. Question is clear. There is a wagon, है ना. wagon में दो स्प्रिंग लगी हुई हैं उसको जीरो वेलोसिटी पे लाने के लिए, रेस्ट पे लाने के लिए. ठीक है. तो देखो, the vehicle is moving with this velocity. So it means the vehicle is having some kinetic energy. Vehicle is having some kinetic energy. And all of you know that the kinetic energy is given by half mv square. सभी को मालूम है. तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है. सो आई विल कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी. मैं थोड़ा बोर्ड को रब करूंगा, सो आप चाहें तो पिक्स ले सकते हैं, है ना. अब जल्दी से पिक्स ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना है. आई विल रब इट, क्योंकि एरिया यही है विजिबल आपके लिए. ओनली दिस एरिया इज विजिबल. सो कैन आई गो अहेड, कैन आई रब इट? यस सर. So I will first calculate the kinetic energy of the vehicle. So kinetic energy is given by half mv square. So half m is, what is m? 1500 kg. What's the velocity? Velocity is 1.5 meters per second. है ना? Meters per second. तो आप ये बताइए किसमें यूज करेंगे? You will use in millimeters per second or millimeters per second?
है ना. If you want to calculate the energy in joules, you want to calculate the energy in joules. Okay, so in joules you have to take velocity in meters. You have to take velocity in meters, because joule is what? Joule is 1 joule is given by 1 Newton meter. 1 joule is basically 1 Newton meter. So you have to take the velocity in meters per second. Very important. Unit का ध्यान हमेशा रखना है. So this is 1.5 whole square. Solve it. आपके पास कैलकुलेटर्स होंगे सभी के पास. तो इसे सॉल्व करके बताइए what is the value you are having. So in my solution the value is 1687.5. 168. Sir, 1687.5. Right, बिल्कुल सही है. 1687.5 न्यूटन मीटर, और इट इज जूल, है ना. इट इज जूल, और यू कैन से इट इज न्यूटन मीटर. 1687.5 न्यूटन मीटर. And if you want to change this into Newton millimeter, then this will be 1687.5 into 10 to the power 3 Newton mm. Now this energy is in Newton mm. 1687.5 Newton mm. So this is the kinetic energy. Okay. Now springs are attached to the wagon. Springs are attached to the wagon. Okay, so because of this energy is the capacity of doing work. Okay, energy is the capacity of doing work. So because of this work, the springs are compressed, and the deflection on the springs is given. How much is given? It is given 150 mm delta. Springs are compressed by 150 mm. Okay, so springs are compressed means they are storing the energy. Springs are storing the strain energy. So strain energy can be found. Strain energy is given by half P delta. Half P delta. तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं? There is a graph. So you are having the force P over here on the y-axis, and let delta is here. So as the force increases, delta also increases. So you are getting a straight line. And P is proportional to delta. So force increases, delta also increases. So the graph between P and delta is a straight line. The area below this curve, it is a triangle. So area of this triangle is the strain energy. Area of this triangle is the strain energy stored in the string. So it is given by area of the triangle is half base into height. So it is half multiplied by base is delta, and height is P. So it is half P delta. Okay, so that's why I have written over here this formula, half P delta. Okay, now P is not available. P is unknown. Force is not given. Delta is given. Delta is 150. So I can write it here, half P. Delta is given 150. So it is 150. So this is the energy stored in one spring. This is the energy stored in one spring. And how many springs are used in the example? Sir, 2 springs. There are 2 springs. So that's why I will multiply this total energy Multiply by 2. by a factor of 2. I will multiply this by a factor of 2 to cancel. So it is 150 P. It is 150 P. And unit is Newton mm. So this is strain energy 150 P. This is kinetic energy. From the equilibrium point of view, both energy must be equal. Both energies must be equal. तो इसको equal करके हम force की value find कर सकते हैं. We can find the force. ठीक है, तो जरा equate कर दीजिए और force की value बताइए कितनी आ रही है. So 150 P equal to 1687.5 10 to the power 3. Find P from here. How much P is coming? कोई बता दीजिए कितना P आ रहा है? In my solution, it is coming 11,250. तो सही है, 11,250 and unit is Newton, है ना.
So force coming on each spring. What is the P? It is the force coming on every spring, है ना? हर स्प्रिंग पर इतना फोर्स आ रहा है 11,250. पहली स्प्रिंग पर 11,250, दूसरी स्प्रिंग पर 11,250. What is the total force? Total force is double of it. So 22,500 is the total force coming on both these springs. Yes, sir. It is parallel. तो एक स्प्रिंग का हमको ये मिल गया 11,250. ठीक है. तो जब फोर्स मिल गया, तो फोर्स मिलने के बाद तो फिर तो सारी चीजें लगभग सेम होती हैं, है ना? फिर तो क्या है, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. एक टॉ इक्वल टू k मल्टीप्लाइड 8pc डिवाइडेड बाय pi d स्क्वायर. कौन सा फॉर्मूला कहलाता है? ये लोड स्ट्रेस इक्वेशन. इट इज ए लोड स्ट्रेस इक्वेशन. अब आप इसको एनालाइज करो. k क्या है? वॉल फैक्टर, है ना? और वॉल फैक्टर क्या होता है? 4c - 1 4c - 4 प्लस 0.615 डिवाइडेड बाय c. अब क्वेश्चन में देखो क्या c गिवन है? एक बार Yes, sir. क्वेश्चन में c गिवन है. स्प्रिंग इंडेक्स कैन बी टेकन एट 6. इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. सो स्प्रिंग इंडेक्स इज 6, सो वी कैन फाइंड p. ठीक है. फोर्स इज 24 24 - 1 23 24 - 4 is 20 0.615 divided by 6. इसको सॉल्व कर लीजिए. कितना आ रहा है? 1.2525. So it is coming 1.2525. So k is available to us. Now p is the force. P is available 11,250. अभी हम कैलकुलेट किया. p तो हमें मालूम है ना? स्प्रिंग पे आने वाला फोर्स इट इज 11,250 न्यूटन. c is the spring index. Spring index is given in question. It is 6, है ना? वो भी हमें मालूम है. The wire diameter d is not available to us, है ना? D is the unknown parameter. Now what about tau? Tau is the allowable value. So allowable value is given in question 0.50 of SUT. 0.50 of SUT. And एक formula और है इसमें. SUT is given by a upon d to the power n. SUT is a by d to the power n. ये स्प्रिंग में फॉर्मूला मैंने एक लैब में बताया था एक बैच को. बाकी बैचों को भी मैं लैब में ही बताऊंगा इसके बारे में. अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए. SUT is a by d to the power n. A and m are constants. D is the wire diameter. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0.50 a. What is capital A? Capital A की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में? A and m they are given 1855. So capital A is given 1855. D to the power m. M is given. How much m is given? 0.187. 0.187. तो देखो टाउ को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस वैल्यू से. टाउ की जगह ये लिख सकते हैं. फिर आप इस पूरी इक्वेशन में ओनली स्मॉल d इज द अननोन पैरामीटर. सो फाइंड d. d फाइंड कर लीजिए. सर इसका डेरिवेशन नहीं है क्या? a by d raised to the power m का? नहीं, डेरिवेशन है. इट इज एम्पिरिकल रिलेशन. आप कौन सी बैच में थे? लैब वाली बैच में थे क्या जिसमें मैंने ये कराया था? हाँ सर था. आप थे ना? हाँ, तपन 4 बोल रहे हैं ना? हाँ. हाँ सर. एम्पिरिकल रिलेशन जनरेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटल डेटा. ठीक है. तो इसमें सर a और m है, उसका कोई सिग्निफिकेंस है कि क्या क्या मतलब है दोनों का? नहीं, दे आर कांस्टेंट्स. जैसे कि y = mx + c में c ये कांस्टेंट, m ये कांस्टेंट, तो आप कहते हैं m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, है ना? यस सर. और c के बारे में आप कहते हैं इट इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, है ना? इट इज द इंटरसेप्ट. तो उसी तरह से SUT और d के बीच देयर इज सम ग्राफ, है ना? उस ग्राफ के कांस्टेंट्स हैं ये, है ना? अब वो कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं. स्लोप हो सकती है, स्लोप का फर्स्ट डेरिवेटिव हो सकता है ना? दे आर द कांस्टेंट्स. So ओके सर. now I am writing tau equal to this value. So it is 0.50 1855 divided by d to the power 0.187. ये तो मैंने लिख दिया tau की जगह. k की जगह मैंने माइनस लिखा 1.2525 मल्टीप्लाइड 8. फोर्स की वैल्यू हमारी निकली है 11,250. कैपिटल C क्वेश्चन में 6 दे रखा है. बाकी पाई d स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 आप ले लेंगे बस. अब इसको सॉल्व करके आप मुझे बताइए व्हाट इज d. यूज योर कैलकुलेटर्स एंड फाइंड d.
सर 20.21 20.21 बिल्कुल सही है ना, इट इज द राइट आंसर। मेरे पास 20.18 है, 20.21 बहुत ही नियर है। ठीक है, 20.21। So this is the wire diameter we have calculated, है ना। इंपॉर्टेंट यही होता है वायर डायमीटर सबसे ज्यादा, क्योंकि जब ये निकल जाता है तो बाकी सारी चीजें बड़े आराम से निकल जाती हैं। कैपिटल डी क्या होता है? सी डी, सी की वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 21, कितना हो गया कैपिटल डी? 126 है, 21 into 6, so it is 126 है। कैपिटल डी फाइंड हो गया। इसके बाद निकालना क्या है हमें? नंबर ऑफ द एक्टिव कॉइल्स। तो कॉइल्स निकालने के लिए हमेशा हम यूज करते हैं लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। लोड स्ट्रेस इक्वेशन यूज करते हैं वायर डायमीटर निकालने के लिए, और लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज होती है नंबर ऑफ कॉइल्स निकालने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइल्स निकालने के लिए डेल्टा इक्वल टू 8 PDQN, ये हमने ये डिराइव्ड दिस, सो डेल्टा इज 8 PDQN by PD4। नाउ व्हाट इज डेल्टा? 150 डिफ्लेक्शन इन ईच स्प्रिंग, है ना। इट इज डेल्टा 150, 8 फोर्स इज गिवन। क्या बोर्ड विजुअल है आपको? Yes, sir. Yes, sir. So force is 150. Capital D we have calculated 126 mm. So it is 126 power 3. Number of the active coils is unknown. Divided by G, modulus of rigidity question में given है 81,370. D हमने find कर लिया है 21 mm. So it is 21 to the power 4. So only the unknown is capital N. So you can find capital N from here. Solve कर दीजिए कितना आ रहा है। चलिए थोड़ा जल्दी बात बताइए कैलकुलेशन। आवर टाइम इज गोइंग टू एंड नाउ। द लेक्चर टाइमिंग्स आर ओनली 40 minutes in the online classes, है ना। So just tell me the value. Capital N in my solution, capital N is coming 13.18. आप बताइए कितना आ रहा है? यही आ रहा है आंसर आपका? N, capital N. Yes, sir. 13.1 है ना। So I am rounding off it to 14 coils. 14 coils are active coils, है ना। So what is total coils? Total coils is M plus 2. So it is 14 plus 2. So it is 16 coils. So total coils are 16. Active coils are 40. ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालना है? अननोन पैरामीटर में देखो मैं पढ़ता हूं। वायर डायमीटर निकाल लिया, मीन कॉइल डायमीटर वो भी निकाल लिया, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स ये भी हो गया, नंबर ऑफ टोटल कॉइल्स 16 ये भी हो गया। इसके बाद चाहिए सॉलिड लेंथ। सॉलिड लेंथ क्या होती है? व्हाट इज द फार्मूला फॉर द सॉलिड लेंथ? सॉलिड लेंथ इज गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स मल्टीप्लाइड बाय वायर डायमीटर, है ना। देखो ऐसे कॉइल टच हो जाती हैं आपस में, कॉइल्स आर टचिंग टू ईच अदर। तो एक कॉइल का डायमीटर क्या है? वायर डायमीटर d है, तो नंबर ऑफ द कॉइल्स 16 है, तो 16 into d, है ना। nd into d, so it is 16 multiplied d is 21, 16 into 21, बताइए कितना आ रहा है? Yes. Sir, 336, sir. 336 है। Yes, sir. तो ये तो सॉलिड लेंथ हो गई। अब इसके बाद हमको फ्री लेंथ निकालना है, LL। तो फ्री लेंथ क्या होती है? सॉलिड लेंथ प्लस गैप, टोटल गैप अलाउड प्लस डेल्टा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्री लेंथ। सॉलिड लेंथ में कितना गैप अलाउड है वो जोड़ो, फिर कितना डिफ्लेक्शन हुआ है वो जोड़ो, देन यू विल फाइंड द फ्री लेंथ। सो LS is 336, टोटल गैप अलाउड, है ना। टोटल गैप अलाउड, दो कॉइल्स के बीच में कितना गैप अलाउड है ना। जनरली 1 mm से 2 mm के बीच अज्यूम करते हैं।
1 mm, 1.5 mm, 2 mm, जो भी एज्यूम करना है, ठीक है। तो यदि मैं 2 कॉइल, मान लो यहाँ पे 16 कॉइल है, 1 2 3 ऐसे 16 कॉइल, तो एक कॉइल दूसरी कॉइल के बीच में जो गैप है ये मुझे एज्यूम करना है। मैंने एज्यूम कर दिया कि 2 mm गैप अलाउड है। कितना गैप अलाउड है? 2 mm। टचिंग नहीं उनकी आपस में, दे शुड नॉट टच ईच अदर, देयर इज नो मेटल टू मेटल कांटेक्ट, सो देयर इज अ गैप ऑफ 2 mm। So between two coils there is a gap of 2 mm. How many coils are there? 16 कॉइल सर, 15 गैप होंगे। हाँ, 16 coils are there, but gaps will be 15. So this gap is given by total coils minus 1 into gap between two adjacent coils. इस फॉर्मूले को ऐसे लिखें तो ज्यादा बेहतर है। प्लस LS plus NT minus 1 into gap between two adjacent coils plus delta. So it is 336 plus NT 16, 16 minus 1 is 15. Allowed gap is 2 mm. Delta is how much? Delta कितना है? What is delta? 150 mm is given in question. 150 mm is given in question, but we have rounded off the coils. We have rounded off the coils. Coils हमने round off कर दिए ना? So because of this rounding, the gap, the delta will be changed, because delta depends on number of coils, है ना? So delta will be changed, so you can find the new delta, है ना? You can find the new delta. तो आप यहाँ पे delta new लिखिए, इसको delta में लिखिए, आप लिखिए delta final और delta new. So delta new is given by 8 PD cube n divided by GD4. Force is 150, capital T is 126. Number of coils is 40 active coils. हमेशा फॉर्मूले में कौन सी कॉइल यूज करनी है? एक्टिव। G 81,370, वायर डायमीटर इज 21 पावर 4। सॉल्व करें कितना? फाइनल देंगे 150 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, हल्का सा, है ना? कितना आ रहा है बताओ? बस 2-3 मिनट और मेरे साथ समय दीजिए, आपका क्वेश्चन फाइनल हो जाएगा ये। And then our helical spring part will be finished. In the next class, we will discuss the leaf spring. सर 7.80 करके आ रहा है क्या सर कुछ? डेल्टा क्यू नहीं, देखो 150 तो पहले ही था, तो 150 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा ये, 7 तो नहीं आएगा। सर 159.2। हाँ ये सही है, 159 अब मेरे पास आ रहा है 159.27 mm. So this is delta nu. तो इस डेल्टा न्यू को मैं ऐड कर दूंगा 159.27। फ्री लेंथ निकल गई, इसको सॉल्व कर दीजिए, कितनी फ्री लेंथ आ रही है? 336 प्लस 15 30 प्लस 159.27। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मेरे पास आ रहा है 525.27। आप बताइए कितना है? 525.27 और इसको राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, 526 mm is the free length. 526 mm is the free length. बिल्कुल सही है। आगे आपका इतना, आगे चलें? हेलो, यस सर, आ गया सर। तो देखिए अब हमने फ्री लेंथ निकाली। अब अगला पैरामीटर क्या है? पिच। पिच का फॉर्मूला होता है फ्री लेंथ डिवाइडेड बाय एनटी माइनस 1। फ्री लेंथ कितनी आई है? 526। एनटी कितना आया है? 16 माइनस 1। सॉल्व करिए। 526 बटे 16 माइनस 35.07। So this is the pitch. पिच भी निकल गई। अब क्या बचा? स्प्रिंग रेट, एक्चुअल स्प्रिंग रेट और रिक्वायर्ड स्प्रिंग रेट, ये दो चीजें निकालनी है। एक्चुअल स्प्रिंग रेट और रिक्वायर्ड स्प्रिंग रेट, ठीक है? तो देखो एक्चुअल कैसे निकालेंगे? एक्चुअल स्प्रिंग रेट इज गिवन बाय P by डेल्टा। व्हाट इज फोर्स? 150 है ना? फोर्स की वैल्यू क्या है? 150 न्यूटन। एंड व्हाट इज डेल्टा? 150। डेल्टा भी 150, फोर्स 150 न्यूटन, तो कितना हुआ K एक्चुअल? फोर्स की वैल्यू तो 11,250 आई थी हमारी, P 11,250 ये हमने कैलकुलेट किया था। डेल्टा 150, इसको डिवाइड करिए, K एक्चुअल आपका आ जाएगा। यूनिट इज न्यूटन पर एमएम।
Yes, what is the value? 75. 75 Newton per mm. So this is the actual stiffness required, actual spring rate required. Now come to the K required. या K हमें कितना मिल रहा है ना, तो K निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए हम ये करते हैं. देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इक्वल टू 8P2N डिवाइडेड बाय GD4. ये है ना फॉर्मूला. ठीक है, तो यहां से P बाई डेल्टा को हम कैसे निकाल सकते हैं, GD4 डिवाइडेड बाय 8D2N. ये P बाई डेल्टा ही स्प्रिंग रेट है ना. तो जो डेल्टा न्यू है उससे निकालूंगा, फॉर्मूला यही रहेगा, P बाई डेल्टा न्यू. Q की वैल्यू 11250, डेल्टा की वैल्यू 159.27. परफेक्ट. डेल्टा बदल गया है ना. सर ये दो पहले भी तो हमने निकाल लिया है ना, रिक्वायर्ड स्प्रिंग रेट जो आप बोल रहे थे. रिक्वायर्ड निकाल लिया, एक्चुअल अब निकाला है ना, उल्टा हो गया. दिस इज रिक्वायर्ड क्योंकि क्वेश्चन में 150 गिवन है, सो दिस इज रिक्वायर्ड एंड दिस इज एक्चुअली अवेलेबल. सर ये जो के एक्चुअल आया सर वो 70.63 आया है. हाँ 70.63. सो आंसर इज 70.63 न्यूटन पर एम. ठीक है, तो एक्चुअल स्टिफनेस हमको रिक्वायर्ड है ये है ना, बट हमको डिजाइन करने के बाद, राउंडिंग वगैरह करने के बाद फाइनली अवेलेबल या अवेलेबल नहीं की 70.63, क्योंकि डेल्टा चेंज हो गया स्लाइटली. सो दिस क्वेश्चन कंप्लीट्स है ना. सो एक क्विज खेलना चाहोगे, 2-3 क्वेश्चन की? हाँ सर खेल लेंगे सर. यस सर. बस 1 मिनट दीजिए, मैं जरा क्विज ऑन करता हूँ. सर एक्टिव और इनएक्टिव कॉल बता दीजिए एक बार. एक्टिव और इनएक्टिव कॉइल. ओके चलिए. हाँ सर, और ये फ्री लेंथ का भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया. फ्री लेंथ का कॉन्सेप्ट जो बताता हूँ, और जैसे फ्री लेंथ है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, दोनों चीजें लेंगी दोबारा से. देखो नीचे बेस है, बेस पे स्प्रिंग रखी है, दिख रहा है ना आपको? यस सर. ओके, तो देखो सबसे पहले मैं आपको सुना दूं कॉइल, एक्टिव कॉइल और इनएक्टिव कॉइल का कांसेप्ट. नीचे बेस पर ये कॉइल अटैच्ड है ना, तो जब ऊपर से फोर्स आएगा दिस स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड. तो कंप्रेशन में ये बॉटम वाली जो कॉइल है ये पार्टिसिपेट नहीं करती है, does not participate in deflection. Bottom coil does not participate in the deflection. So the coil which does not participate in the deflection is known as inactive coils. ठीक है, तो ये bottom coil inactive coil है, और यदि ऊपर से भी इसे फिक्स कर दें then it is also inactive, है ना. तो जनरली कई तरह के केस होते हैं. यदि आपने केवल इसको फिक्स किया है then आपका इनएक्टिव कॉइल 1 होगा. दोनों को कर दिया है तो आपका इनएक्टिव कॉइल 2 हो जाएगा. ठीक है, कभी कभी यहां पर बैलेंस बनाने के लिए इस कॉइल को ग्राइंडिंग कर देते हैं, थोड़ा प्लेन कर देते हैं, है ना, प्लेन कर देते हैं. तो ग्राइंडिंग करने से आधी कॉइल क्या होती है, ग्राइंड हो जाती है. तो उस केस में इनएक्टिव कॉइल ओनली हाफ कंसीडर होती है, एक की जगह पर, है ना. तो कई सारे केस होते हैं. तो बाय डिफॉल्ट केस जो हम अज्यूम करते हैं वो ये अज्यूम करते हैं कि जनरली टॉप कॉइल एंड बॉटम कॉइल, टॉप कॉइल एंड बॉटम कॉइल, we are assuming that both the coils are not participating in the deflection. So that's why we add 2. So इसलिए फॉर्मूला हमारा बन जाता है NT equal to N plus 2. ये जो 2 आया है, ये 2 में क्या है, एक तो टॉप कॉइल है और एक बॉटम कॉइल, and both these coils are not participating in the deflection. ये तो बात हो गई कॉइल्स की. अब आते हैं फ्री लेंथ पर. तो देखो जब स्प्रिंग पे कोई फोर्स ही नहीं है, मान लीजिए मैंने ये स्प्रिंग बना दी, कितनी कॉइल्स है बताओ जरा, 1 2 3 4, 4 कॉइल मान लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारी LF है. जब फोर्स की वैल्यू 0 है, कोई फोर्स ही नहीं आ रहा है स्प्रिंग पे. ठीक है, अब स्प्रिंग में कोई फोर्स आ गया
लेट बी इक्वल टू समथिंग, लेट बी इक्वल टू कुछ ही मान लेते हैं, लेट 1000 है ना, अजूम करके। तो अब नीचे से आप देखेंगे ये पांचों कॉइल आपस में क्या होंगी, कंप्रेस होंगी। कंप्रेस होने पे हमें कुछ डेल्टा मिल जाएगा, मतलब कितना कंप्रेशन मान लेते हैं, ये डेल्टा से कम होगा। तो यहां से कॉइल शुरू हुई 1 2 3 4 1 2 3 4, वही सेम स्ट्रिंग कंप्रेस हो गई बाय डेल्टा। ठीक है, तो फ्री लेंथ में से यदि डेल्टा माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कंप्रेस्ड लेंथ मिल जाएगी। सो दिस इज एलसी। ठीक है, फ्री लेंथ में से यदि डिफ्लेक्शन को घटा दें तो हमको कंप्रेस्ड लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, अब आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों कॉइलों के बीच में अगेन देयर इज अ गैप। इस गैप को हमने अभी क्वेश्चन जो किया था उसमें हमने 2 मिलीमीटर अज्यूम कर लिया था इस गैप को। कंप्रेस होने के बाद क्या गैप है उनके बीच में, देयर शुड नॉट बी मेटल टू मेटल कांटेक्ट, देयर शुड बी मस्ट सम गैप, एक गैप होना ही चाहिए उनके बीच में, है ना, फ्रॉम डिजाइन पॉइंट। तो इस गैप को हमने 2 मिलीमीटर अज्यूम कर लिया था। लैब में एक क्वेश्चन किया था, वहां पर हमने इस गैप को 1 मिलीमीटर अज्यूम किया था। 1 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, आप जो चाहें अज्यूम कर लें, है ना। इसका क्राइटेरिया है 1 से 2 के बीच में। तो ये हमने 2 मिलीमीटर अज्यूम कर लिया था गैप, करेक्ट है। अब क्या हुआ, यदि इस फोर्स को और बढ़ाएं, इस फोर्स को और बढ़ाते जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये कॉइल्स आपस में टच करने लगते हैं, सारी की सारी कॉइल्स आपस में क्या होंगी, टच करने लगेंगे। तो ये जो गैप है, ये गैप अभी 2 मिलीमीटर है, ये एक स्थिति ऐसी आएगी कि गैप की वैल्यू 0 mm हो जाएगी। तो जो नई सिचुएशन बनेगी वो ऐसी बनेगी, ये तो बेस है, 1 2 3 4 4 कॉइल हैं, तो मैंने यहां से दिखा दिया 1 2 3 4। अब ये चारों आपस में टच कर रही है एक दूसरे को, दे आर टचिंग टू ईच अदर, देयर इज नो गैप। ठीक है, तो यहां तक तो देखो फ्री लेंथ थी, यहां तक फ्री लेंथ थी, यहां तक कंप्रेस्ड लेंथ थी, और यहां तक केवल सॉलिड लेंथ है। तो ये पार्ट सॉलिड लेंथ है। सॉलिड लेंथ में यदि गैप जोड़ दें, पूरा का पूरा गैप, टोटल गैप, जैसे अभी हमारे क्वेश्चन में 30 mm गैप आया, 15 दूनी 30, तो इस सॉलिड लेंथ में गैप जोड़ दें तो कंप्रेस्ड लेंथ आ जाएगी। कंप्रेस्ड लेंथ में यदि डिफ्लेक्शन जोड़ दें तो फ्री लेंथ आएगी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तपन, ये क्लियर? हाँ सर क्लियर है। बिल्कुल, है ना। तो फाइनली जो फॉर्मूला बनता है वो मैं लिख देता हूं, फ्री लेंथ इज गिवन बाय सॉलिड लेंथ प्लस टोटल गैप। टोटल गैप को कैसे निकालते हैं, 10⁻⁻1 इनटू गैप बिटवीन एडजेसेंट कॉइल्स, बिटवीन 2 एडजेसेंट कॉइल्स। ठीक है, ये टोटल गैप है, टोटल गैप प्लस डेल्टा न्यू, फाइनल डेल्टा, डेल्टा या डेल्टा न्यू जो भी लेते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आज की क्लास हमारी खत्म होती है ना। अब क्विज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और एक तरह से यही क्विज होगी अपनी क्वेरी जो है। तो हेलिकल स्प्रिंग पार्ट इज नाउ ओवर। कोई इसमें क्वेरीज हो तो आप प्लीज नोट करके रखिएगा, अगली क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लीफ स्प्रिंग को पढ़ के आइएगा, है ना। ओके सर। ओके, थैंक यू। तो क्या मैं क्लास एंड कर सकता हूँ क्लास अब? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।